Good morning everyone. Hope you all are doing well. So I welcome you all in Aradhana Vinay Delhi. आप सभी को सुहानी सुबह। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो मैं आप सभी का आराधना विनय दिल्ली में स्वागत करती हूँ। सो होप यू ऑल आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छा समय अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हैं। सो एंड इफ गॉड विलिंग वी विल मीट सून। और परमेश्वर की इच्छा रही तो हम लोग जरूर बहुत ही जल्द मिलेंगे, जिस तरह हम लोग पहले मिला करते थे। तो अभी कुछ समय होगा, हम लोग आराधना में जाएंगे, तो मैं कृपा को बोलूंगी कि वो कुछ वचनों को पढ़ेगी। मैं पढ़ूंगी लूका उसका 15 अध्याय और उसका 4 से लेके 7 तक। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। और इंग्लिश में इस तरह है, सपोज वन ऑफ यू हैज 100 sheep and loses one of them. What does he do? He leaves the other 99 sheep in the pastures and goes looking for the one that got lost until he finds it. When he finds it, he is so happy that he puts it on his shoulders and carries it home. Then he calls his friends and neighbors together and says to them, I am so happy I found my lost sheep. Let us celebrate. In the same way I tell you, there will be more joy in the heaven over one sinner who repents than over 99 respectable people who do not need to repent. So let's come before God. तो आइए हम परमेश्वर के सामने आए और अपने दिलों को उसके सामने खोलें। Father, we come before you. परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके हर एक कामों के लिए परमेश्वर, आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर, और आपकी विश्वास योग्यता के लिए। Father, we thank you for all your words, for all your blessings and your faithfulness, Father. परमेश्वर, धन्यवाद कि आप विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर, आप एक अच्छे पिता हैं। You are a good father. Leave the 99 and find that one sheep. परमेश्वर, आप उन 99 भेड़ों को छोड़ के परमेश्वर उस एक भेड़ को परमेश्वर ढूंढते हैं जो खोई हुई है। Thank you, Father, for
You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it's chasing me down, fight still. I'm falling, so 99. I couldn't done it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. So, Father, your love is overwhelming. The sweet love. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, it's coming up. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, it's coming up to me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, it's coming up to me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, it's coming up to me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, it's coming up to me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, it's coming up to me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, it's coming up to me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming up to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it's chasing me down, fight still. I'm falling, so 99. I couldn't done it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. So, Father, we don't deserve your love. Thank you, Father, for your love. Thank you for your unending love. Father, your word says it's not the healthy who need a doctor, but the sick. I've not come to call the righteous, but sinners. परमेश्वर धन्यवाद कि आप लोग परमेश्वर आप पापियों के लिए आए परमेश्वर, ना कि उन लोगों के लिए परमेश्वर जो कि परमेश्वर धर्मी है. Father, we thank you for your love. Thank you, Father, for the joy that we find in you. परमेश्वर धन्यवाद उस आनंद के लिए जो हम लोग तुझ में पाते हैं. परमेश्वर तेरा आनंद हमारी ताकत है. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत.
सामर्थ्य सिद्ध होती है परमेश्वर। Your power is made perfect in our weakness, Lord. Thank you, Father, for your power. परमेश्वर धन्यवाद आपकी सामर्थ्य के लिए। सचमुच परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। Father, your grace is sufficient for us. धन्यवाद परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, और आपके उस महान और अनोखे प्यार के लिए परमेश्वर। परमेश्वर जब हम अकेले होते हैं, परमेश्वर तू हमारे साथ है। हमारी परेशानियों में तू हमारे साथ है। परमेश्वर संसार के अंत तक आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते। धन्यवाद परमेश्वर आपके वायदों के लिए। परमेश्वर हम अपनी आंखें आपकी ओर उठाते हैं। Father, we lift up our eyes to you. परमेश्वर हम अपनी आशा को आपके ऊपर रखते हैं। Father, we put our hope on you. आप हमें संभाले परमेश्वर, हर परिस्थिति में आप हमें संभाले। परमेश्वर आपके अनुग्रह को हम लोग और चाहते हैं, ये सामर्थ्य को हम लोग और महसूस करना चाहते हैं परमेश्वर। Thank you, Father, for your love. Father, help us that wherever we go, Lord, we'll take your presence. परमेश्वर हम जहाँ भी जाए आपकी उपस्थिति को लेके जाए परमेश्वर, आपके प्यार को हम लेके जाए। Thank you, Father, for your presence. परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं हर एक चीजों के लिए पिता। मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Good morning, praise the Lord. Welcome to you all in Aradhana Vineyard. Thank you, Kiran, Krupa, Namrata, Dheeraj for leading us in worship. धन्यवाद किरण, कृपा, नम्रता, धीरज आराधना में अगुवाई करने के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं और कम्युनियन में जाएं, हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला अनाउंसमेंट हमारे होम ग्रुप के विषय में है। जैसे आप सब जानते हैं कि संगम विहार में हफ्ते में 2 दिन होम ग्रुप होता है जो पास्टर दिनेश के द्वारा कंडक्ट होता है। यदि आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पास्टर दिनेश से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होम ग्रुप पास्टर एनालिन के द्वारा लीड किया जाता है। अगर आप सफदरजंग होम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पास्टर एनालिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो हमारे वुमेंस प्रेयर और मेंस प्रेयर मीटिंग है जो थर्सडे एंड फ्राइडे को होती है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पास्टर दिनेश और पास्टर रीटा से कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अनाउंसमेंट हमारे टाइथ और ऑफरिंग के विषय में है। यदि आप अपने टाइथ एंड ऑफरिंग चर्च में सेंड करना चाहते हैं तो आप पास्टर दिनेश से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे पहले कि हम वचन से सुने, आइए हम अपने दान और दशमांश को अपने हाथों में लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु आज के इस दिन के लिए पिता, और धन्यवाद देते हैं कि जो आशीष प्रभु आपने हमें दी है प्रभु, हम उसको आपके सामने लेकर आते हैं खुदा। प्रभु आप इसे बढ़ाएं खुदावन, और परमेश्वर जिनके पास नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु आप उन्हें भी प्रभु इसे देने के लिए परमेश्वर प्रभु आप मदद करें। हम धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम उन आशीषों के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दी है खुदावंद। धन्यवाद देते हैं सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, आप हमारे हृदय को तैयार कर रहे हैं। जब हम वचन को सुनते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु अपने हृदय में उसको रखने वाले हो। सारा आदर महिमा हम आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहद अच्छे से होंगे और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि फिर एक बार परमेश्वर ने अवसर दिया कि इस रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत करने के लिए। और अक्सर जब परमेश्वर के वचन से बात करनी होती है तो काफ़ी समय इस विषय में मेरा जाता है कि किस विषय में बात की जाए। मगर इस बार जब परमेश्वर के कलाम से बात करनी थी तो इस विषय को जैसे ही प्रार्थना में रखा तो एक शब्द था जो मेरे जहन में आया और वो था रिपेंटेंस। मगर मैं पूरी तौर से तैयार नहीं था कि इस विषय में बात की जाए या इस विषय को लेकर, रिपेंटेंस को लेकर मैं क्या बात करूं। और मगर ये इतना प्रभावी तौर से मेरे जहन में आया, मेरे दिमाग में आया कि मैं इससे इनकार नहीं कर पाया। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ही मर्जी है कि वो चाहते हैं कि हम इस विषय में, रिपेंटेंस के बारे में हम आज के दिन में बात करें। और हम में से ज़्यादातर लोग इस विषय में जानते हैं, रिपेंटेंस के बारे में। और यदि हम बाइबल से इस बारे में हम देखते हैं तो जब हम मत्ती 4:17 में आते हैं तो हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया तो उन्होंने भी रिपेंटेंस के बारे में सबसे पहले बात की। मत्ती 4:17 में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। तो हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह ने भी प्रचार करना शुरू किया तो जो सबसे पहले उन्होंने जो बात कही वो थी कि रिपेंट, आप पछतावा करें। और यही नहीं, जब हम पिंतेकुस्त के दिन में देखते हैं कि जब चेले लोग सब प्रार्थना मिलकर वो कर रहे थे और पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया और वे लोग अन्य भाषा में बात करने लगे तो पूरे संसार से, फर्क फर्क जगह से जो भक्त लोग थे वो वहां पर इकट्ठा थे। तो जब ये चेले लोग जब अन्य भाषा में बात करने लगे, वो लोग आकर इनको देखने लगे कि ये तो जो कुछ भी बात करते हैं हम अपनी भाषा में इसको हमें सुनाई पड़ता है। मगर कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाना चाहा और उन लोगों ने कहा कि लगता है ये तो सुबह सुबह मदिरा के नशे में चूर हैं। तो वहां पर पतरस खड़े होते हैं और पतरस उन लोगों से बात करते हैं। पतरस कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये नशे में चूर हैं, बल्कि जो परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा की थी कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा इन पर उंडेलेगा, वो बात आज पूरी हुई है। और वहां पर हम पाते हैं कि पतरस उनसे बहुत प्रभावी तौर से बात करते हैं। पतरस साफ तौर से इजरायलियों से कहते हैं कि हे इजरायलियों, तुमने यीशु मसीह को अधर्मियों के द्वारा क्रूस पर मार डाला। तुम हो जिन्होंने कि यीशु मसीह को मार डाला है। और ये सारी घटना हम उसके दूसरे अध्याय में पाते हैं और प्रेरितों के काम में। तो प्रेरितों का काम 2:37 हमें बताता है कि जब पतरस इस तरह से इजरायलियों से बात करते हैं कि तुम ही लोग हो जिन्होंने यीशु मसीह को मार डाला है, तब वहां लिखा है 2:37 में कि तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? और जब इस तरह की बात जब इजरायलियों के द्वारा कहेगी, हे भाइयों हम क्या करें, वो चेलों से पूछने लगे, तब पतरस ने जो सबसे पहला जो शब्द उनसे कहा वो था रिपेंट, पछतावा करो। 38वें वचन में आप देख सकते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ, रिपेंट, पछतावा करो। तो सबसे पहली बात जो पतरस वहां पर इजरायलियों से कहते हैं कि आप अपना मन फिराएं, रिपेंट, आप क्या करें, आप पछतावा करें। तो हम सब लोग ये बात को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं अपने गुनाह की हम क्षमा प्राप्त करें, तो जो सबसे पहला जो कार्य है कि हमें मन फिराना है। अर्थात हमें अपने जो गुनाह हैं, जो हमारे पाप हैं, उससे हमें पछतावा करना है। और जब हम बात करते हैं रिपेंटेंस की या पछतावे की, तो ये सिर्फ हमें अपने पापों को मान लेना भर तक सीमित नहीं है कि या हम अपने पापों को मान लेते हैं, उसके लिए हम दुखी हैं, तो वहीं तक जो रिपेंटेंस है या पछतावा वो सीमित नहीं है। बल्कि जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि जब हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को जब हम पहचान लेते हैं, अपने जीवन को जब हम जांचते हैं, हम देख लेते हैं ये कमियां, ये घटियां, ये गुनाह, ये पाप मेरे जीवन में बने हुए हैं, और जब हम उसमें बने रहना नहीं चाहते हैं, तो जब हम वहां पर एक निर्णय लेते हैं कि मैं अब ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता हूं, इस पाप में मैं और भी ज्यादा बने रहना
नहीं चाहता हूं, तो जब वो हम निर्णय वहां पर लेते हैं अपने गुनाहों को पहचान कर, तो वो एक सच्चा पछतावा होता है। वही है जिसे हम रिपेंटेंस के तौर पर जानते हैं। और ये सिर्फ हमारे उद्धार लेने तक सीमित नहीं है कि जब हमने उद्धार प्राप्त किया तो हमने पछतावा किया, मगर जब हम एक मसीही हैं, जब हम चाहते हैं कि मसीही जीवन में दिन ब दिन हम बढ़ोतरी करते जाएं, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं, जब हमारी ऐसी इच्छा है कि हम मसीह के स्वरूप में दिन ब दिन हम बदलते जाएं, तो बड़ा आवश्यक है कि जो रिपेंटेंस है, जो पछतावा है, जो अपने जीवन को जांचना है, अपने गुनाहों को पहचान कर उनसे तौबा करनी है, उसमें आगे नहीं चलने का फैसला लेना है। तो ये वन टाइम इवेंट नहीं है कि जब हमने सैल्वेशन प्राप्त किया तो उस वक्त हमने रिपेंटेंस किया, मगर जब हम सचमुच मसीह के स्वरूप में अपने आप को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो ये हमारे नित्य दिन हमारे जीवन में ये होना चाहिए। नित्य दिन हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए, नित्य दिन हमें अपने जीवन में उन बातों को पहचानना चाहिए जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं है, या जिन बातों को परमेश्वर आज के दिन में हमारे जीवन में नहीं चाहता है। और जब हम वहां पर वो फैसला लेते हैं कि मैं अब इसमें बने नहीं रहूंगा, तो चाहे हो सकता है हमने 10 साल पहले उद्धार प्राप्त किया या 15 साल या 20 साल, इससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर जो रिपेंटेंस है, जो पछतावा करना है, जो पश्चाताप करना है, वो हमेशा नित्य दिन हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। हर दिन हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए, हर दिन हमारे जीवन में एक रिपेंटेंस वहां पर मौजूद होना चाहिए। और बाइबल में कुछ उदाहरणों से हम देखें कि वास्तव में जो रिपेंटेंस है एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में कितना ज्यादा वो महत्वपूर्ण है। तो हम मत्ती उसका 11 अध्याय और उसका 20 से 21 देखेंगे। मत्ती 11वां अध्याय उसका 20 से 21। तो यहाँ पर एक जगह, एक जो नगर है बैतसैदा, उसके बारे में वहां पर वर्णन किया गया। मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि जो बैतसैदा जो नगर है वो ऐसा नगर है जहां पर कि यीशु मसीह ने बेहद सारे आश्चर्य कर्म दिखाए, बड़े अद्भुत कामों को प्रभु यीशु मसीह ने बैतसैदा में किया। और आप लोग जानते होंगे जहां पर कि 5 रोटी और 2 मछलियों से यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को खाना खिलाया था, वो वाली जो घटना थी वो भी बैतसैदा में हुई थी। तो बैतसैदा एक ऐसा नगर था जहां पर यीशु मसीह ने काफी सारे आश्चर्य कर्मों को किया था। तो उसी के विषय में हम मत्ती 11 का 20 का 21 में बात की जा रही है, वो हम पढ़ते हैं वचन से। वहां लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। और यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह जब बैतसैदा और खुराजीन नगर का जिक्र करते हैं तो साथ ही साथ यीशु मसीह बताते हैं कि ये वो नगर है जहां पर यीशु मसीह ने बड़े सामर्थ के काम किए। खुद यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। आपने पढ़ा होगा इसमें जहां पे लिखा है 20वें वचन में कि तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। तो ये कुछ ऐसे नगर थे जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सामर्थ के काम किए थे। तो क्या वजह थी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे सामर्थ के काम किए, आश्चर्य कर्म किए, तो क्यों भला यीशु मसीह इन नगरों को उलाहना दे रहे हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह इन नगरों से निराश हैं? क्या वो वजह है? तो उसी में जब आगे हम सेंटेंस में पढ़ते हैं तो हमें क्लियर होता है क्यों यीशु मसीह इन नगरों से निराश हैं, क्यों इन नगरों को उलाहना दे रहे हैं। तो 20वें वचन का जो आधा हिस्सा है वहां पे लिखता है, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। ये वजह थी। जबकि यीशु मसीह ने यहाँ पे तमाम आश्चर्य कर्मों को किया, तमाम अद्भुत कामों को किया, मगर फिर भी यीशु मसीह इस नगर में निराश थे, इस नगर को उलाहना देते हैं। क्यों? क्योंकि इन नगरों ने अपने मन को नहीं फिराया था। तो जो कारण था कि यीशु मसीह ने वहां पर जो मिरेकल किए, जो 5000 पुरुषों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, जो उसका उद्देश्य था वो सिर्फ ये नहीं था कि वो सांसारिक तौर पर या शारीरिक तौर पर जो उनकी भूख है उसमें वो संतुष्ट हो जाए,
या वो चंगाई को प्राप्त कर ले। ये यीशु मसीह का उद्देश्य नहीं था, मगर यीशु मसीह का उद्देश्य था कि जब वो भलाई उनके साथ की जाती है, वो जो आश्चर्य कर्म किया जाता है, उनको शारीरिक भोजन दिया जाता है, चंगाई दी जाती है, तो उसके द्वारा उनका हृदय दीन हो जाए, वो परमेश्वर को पहचान ले, वो अपने गुनाहों की ओर देखें, वो इस बात को पहचान ले कि हम गुनाहों में हैं, हम पाप में पड़े हैं, और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जब वो परमेश्वर को पहचान लेते हैं तो वो अपने मन को फिराएं, रिपेंट करें, पश्चाताप करें। मगर जब ऐसा नहीं होता है तो यीशु मसीह क्या करते हैं, उस नगर को उलाहना देने लगे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। और आज के दिन में भी जब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं, हमें छुटकारा देते हैं, तमाम तरीके से हमें आशीषित करते हैं, तो सिर्फ हम जो सांसारिक आशीषों को पाकर आनंदित होकर रुक ना जाएं, बल्कि हम अपने आप को दीन करें, हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, हम अपने जीवन को जांचें, और जो कमी घटियां हमारे जीवन में हम परमेश्वर से मांगे कि पवित्र आत्मा आप हमें दिखाइए क्या ऐसी बातें हैं जो आप चाहते हैं हमारे जीवन में ना हो, जिनसे हम छुटकारा प्राप्त करें, ताकि हम मसीह के स्वरूप में और बदलते जाएं। तो हम एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे। हम मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसका 22 से 26 तक हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 8वां अध्याय और उसका 22 से लेकर 26 तक। तो यहाँ लिखा है, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। तो जब हम इस कहानी को भी देखते हैं तो ये जो घटना घट रही है, ये भी कहाँ घट रही है? बैतसैदा में घट रही है। और हमने देखा था कि बैतसैदा वो जगह थी जहां पर यीशु मसीह ने ऑलरेडी बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए थे, मगर उन लोगों ने क्या नहीं किया था, अपना मन नहीं फिराया था, और जिसके कारण यीशु मसीह ने क्या की थी, बैतसैदा नगर को उल्हाना दी थी। और एक बार फिर हम क्या पाते हैं, यीशु मसीह उसी बैतसैदा नगर में, और वहां पर क्या हुआ है बैतसैदा नगर में, बैतसैदा में, और जो लोग थे एक अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह से विनती करने लगे कि आप उसको छुएं ताकि वो क्या हो, वो चंगाई को प्राप्त करें। मगर जहां पर कुछ अलग घटना होती है कि यीशु मसीह उसको छूकर चंगाई नहीं देते हैं, बल्कि वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे क्या करते, सबसे पहले गांव से बाहर ले गया। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि ये जो अंधा व्यक्ति है इस बैतसैदा नगर में चंगाई पाए, जहां पर कि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे आश्चर्य कर्मों को किया था, जहां पर यीशु मसीह ने सामर्थ के कामों को किया था। मगर उन लोगों ने क्या नहीं किया था, उन लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया था। तो यीशु मसीह ने इस अंधे को बैतसैदा नगर में चंगाई नहीं दी, बल्कि उसने उसके हाथ को पकड़ा और सबसे पहले उस नगर से उस अंधे को बाहर ले गया। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो अंधा व्यक्ति उस नगर में, जहां के लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया था, जहां के लोगों ने रिपेंट नहीं किया था, पश्चाताप नहीं किया था, उस जगह पर ही ये अंधा व्यक्ति भी चंगाई प्राप्त करे। यीशु नहीं चाहते थे। और उससे भी महत्वपूर्ण आप देखें तो उसका जो अंतिम वचन हमने अभी पढ़ा था, 26वां वचन, वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं उस व्यक्ति से, जब वो उस अंधे व्यक्ति को चंगाई दे चुके हैं, उस बैतसैदा से बाहर ले जाकर यीशु मसीह ने चंगाई दे दी है, तो उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में रिपेंटेंस, पश्चाताप। यीशु मसीह नहीं चाहते हैं उस अंधे व्यक्ति को उस नगर में जहां के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, वहां पर उसे चंगाई भी दें। और चंगाई के बाद भी वो क्या कहते हैं, इस नगर में तो तू पांव भी ना रखना। तो एक विश्वासी के तौर पर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे नित्य दिन के जीवन में रिपेंटेंस का होना, पश्चाताप का होना, हम अपने जीवन को निरंतर जांचें, क्या कमी घटी है हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा को पुकारें, हम पूछें, प्रभु क्या वो बातें हैं जो आप चाहते हैं हमारे जीवन से दूर हो जाएं। मैं नहीं चाहता हूं उस तरह के जीवन में जो बातें आपकी मर्जी के खिलाफत में मेरे जीवन में बनी। हो सकता है उसके द्वारा हमें सांसारिक लाभ प्राप्त होता हो या तमाम प्रकार की संसार की आनंद देने वाली बातें हो सकती हैं, मगर कितना आवश्यक है कि उन हर एक बातों से जो मसीह यीशु की मर्जी के विरोध में है,
हम अपने मन को फिराएं। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने मन को फिराएं। तो जब एक विश्वासी के तौर पर ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैं हर दिन पश्चाताप करूं, रिपेंटेंस करूं, अपने जीवन को जांचूं, क्या वो बातें जो परमेश्वर की मर्जी के विरोध में है मगर मेरे जीवन में मौजूद है। एक परिवार के तौर पर हमारी आवश्यकता है कि हम रिपेंटेंस करें। प्रभु क्या वो बातें जो आप नहीं चाहते हैं हमारे जीवन से दूर होने के लिए। एक कलीसिया के तौर पर हमें एक ऐसी कलीसिया होना है कि परमेश्वर वो कौन सी बातें हैं जो आप नहीं चाहते इस कलीसिया में हो, क्या वो बातें हैं जिनसे हम पश्चाताप करें, हम रिपेंट करें, जो आपकी मर्जी के खिलाफ जो बातें हैं वो हमारे जीवन से दूर हो जाए। और इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आए, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, हम पवित्र आत्मा को पुकारें। मगर जो एक मुश्किल बात है कि जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं तो एक ऐसी जीवन शैली की हम बात करते हैं जहाँ नित्य दिन हम अपने जीवन को जांचते हैं, हम अपने जीवन में जो कमी घटियां हैं, जो गुनाह है, जो पाप है, उसे खोजते हैं, उससे छुटकारा पाते हैं। तो ये एक ऐसा महसूस होता है कि बड़ा दुखी एक जीवन होगा ना, कि रोजाना हम अपने जीवन को जांचते हैं, रोजाना हम अपने जीवन में गुनाह को ढूंढते हैं, उससे छुटकारा पाते हैं। तो बड़ा एक दुखों से भरा, निराशा से भरा एक ये जीवन होगा। ऐसी एक विचार हमारे हृदय में आता है, मगर वास्तव में इससे बिल्कुल उलट है। आप इस तरह से सोचें, जब आप पूरा दिन बाहर काम पर जाते हैं, आप धूल मिट्टी में हैं, आपका शरीर, आप पसीने में हैं, आप थके हुए हैं, और जब आप घर लौट कर आते हैं और आप क्या करते हैं, आप नहाते हैं, और वो धूल मिट्टी, वो पसीना जब आपके शरीर से दूर हो जाता है तो क्या होता है, एक नई स्फूर्ति, नई तरोताजगी, नया बल आप अपने शरीर में प्राप्त करते हैं। उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में भी जब वो तमाम प्रकार की धूल मट्टी हमारी आत्मिक जीवन पे जम जाती है, और जब हम रिपेंटेंस करते हैं, हम उन बातों को खोजते हैं, उस धूल मट्टी को, उस पसीने को जब हम पाते हैं, और जब हम उससे छुटकारा पाते हैं पश्चाताप के द्वारा कि प्रभु मैं इन बातों को अपने जीवन से निकालता हूं, मैं इसमें बने रहना नहीं चाहता हूं, और जब वो धूल मट्टी पसीना, वो गंदगी जब हमारे आत्मिक जीवन से दूर हो जाती है तो हमारा जो आत्मिक जीवन है वो एक नई स्फूर्ति, नया बल, नई तरोताजगी प्राप्त करता है। तो रिपेंटेंस कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन में एक बड़ा दुखी जीवन हमारा जीवन को बना देगा, बल्कि रिपेंटेंस कुछ ऐसा है जो हमारे आत्मिक जीवन में एक नई स्फूर्ति, नया बल, नई ताकत देने वाला है। तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप अपने जीवन में थकान महसूस करते हैं, अपने आत्मिक जीवन में आप वहां पर घटी महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपका जो मसीह में विश्वास है उसमें कहीं ना कहीं आप कमी घटी महसूस करते हैं, तो आप परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, प्रभु अपना पवित्र आत्मा दीजिए, प्रभु उन बातों को दिखाइए जिन बातों को आप चाहते मेरे जीवन में ना हो, मैं उनमें बने रहना नहीं चाहता हूं, मैं उनसे निकलना चाहता हूं। हम पश्चाताप करें, रिपेंट करें, और जरूर परमेश्वर वो नई स्फूर्ति, नया बल, नई तरोताजगी हमारी आत्मिक जीवन में देगा, और वो बल, वो स्फूर्ति, वो नई ताकत हम अपने आत्मिक जीवन में निश्चित तौर पर महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच। परमेश्वर बेहद आशीषित करें। थैंक यू। आप सबों को देख के मुझे बहुत खुशी है। मैं स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आप सबों का, और ख़ास तौर पे पास्टर दिनेश का मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आज के ख़ास वचन को जो हमारे बीच उन्होंने रखा। और बहुत ही सुंदर दिन है, और परमेश्वर का, खुदावन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें आज का जो दिन दिखाया। हमारे पास आगे का जो समय रहेगा वो हम खुदावन के मेज़ पे जाएंगे, विल मूव इनटू द होली कम्युनियन। तो मैं इसमें अगुवाई करूंगा, आप अपना बाइबल आप ले सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मेज़ है वो आपने तैयार करके रखा हुआ है, जो जूस है और जो रोटी है आपने अपने पास रखा हुआ है। तो जैसे मैं इस चीज़ में लीड करूंगा, अगुवाई करूंगा, जब मैं प्रभु भोज में भाग लूंगा तो मेरे साथ साथ आप भी ले सकते हैं। तो मैं वचन से पढ़ूंगा और आप अपने बाइबल में आप मेरे साथ साथ चल सकते हैं आगे। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा, आप जो लोग हिंदी में समझते हैं आप अपना बाइबल ले लीजिए और हिंदी में मेरे साथ साथ आगे पढ़िए। पहला कोरिन्थियों, 1 Corinthians चैप्टर 11
verses 23rd to 31st. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. When he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. But if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. परमेश्वर का कलाम यहाँ पे साफ साफ कहता है कि किस तरह यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान उस कलवरी क्रूस पे दिया, हमारे गुनाहों को अपने आप के ऊपर ले लिया। और मैं एक ख़ास चीज़ यहाँ पे देखता हूँ कि हम कहीं पे भी ऐसा चीज़ नहीं देखते हैं, हम किसी और धर्म में हम या कि कहीं और ऐसा चीज़ नहीं देखते हैं कि किस तरह खुदावन ने हमसे मोहब्बत की है। हम देखते हैं पुराने नियम में जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने ले जाता है और वो कुर्बान करने ही वाला होता है, वहाँ पे परमेश्वर उसको रोकता है और बोलता है, रुको इब्राहिम, मैं इसका बंदोबस्त करूँगा, आई विल प्रोवाइड। परमेश्वर खुद कहता है कि मैं जो परफेक्ट सैक्रिफाइस है, जो पूर्ण बलिदान है, उसका बंदोबस्त मैं करूँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाया गया और आगे किस तरह प्रभु यीशु को क्रूस पे लटकाया गया, किस तरह उसके शरीर को तोड़ा गया, किस तरह उसके लहू को बहाया गया, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह खुदावन का वो बात जो खुदा ने रखा कि मैं उसका बंदोबस्त करूँगा, वो चीज़ हम यहाँ पे पूरा होते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु खुद एक इंसान के रूप में आए, एक इंसान के रूप में, जब वो पूर्ण रूप से इंसान और पूर्ण रूप से खुदा था, मगर इंसान के रूप में उन्होंने हर एक जो कदम था उनका इस दुनिया में उन्होंने चला, हर एक टेम्पटेशन से, हर एक मुश्किलात से वो होके गुज़रे, फिर भी वो एक साफ, एक पाक ज़िंदगी उन्होंने जिया। हम सबों के लिए एक मार्गदर्शन का एक मिसाल उन्होंने दिया। प्रभु कहता है कि हम भी उनके साथ उनके जैसे हो सकते हैं, हम भी एक पाक ज़िंदगी जी सकते हैं। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं खुदा उनके सामने, प्रभु खुदा मैं एक गुनहगार हूँ, तो वचन कहता है, खुदा उनका कलाम कहता है कि वो बिल्कुल एक जस्ट गॉड, एक न्याय रूप
वाला एक खुदा जो न्याय रखता है, एक बिल्कुल सबको प्रेम रखता है, वो कहता है कि मैं उसी क्षण उसी समय उसको माफ़ करूँगा जो एक साफ दिल से मेरे पास आता है और माफ़ी मांगता है और अपने कुकर्म से, अपने जो गलत रास्तों से एक मोड़ ले लेता है, वहाँ से वो खुदावन की तरफ मुड़ जाता है। खुदावन खुदा कहता है कि मैं उसी क्षण उसी समय उसी वक्त उसको माफ़ करूँगा। और यहीं तक नहीं सीमित रहता, खुदावन खुदा कहता है कि मैं उसका जो गुनाह है फिर याद नहीं रखूँगा। क्या हम ऐसा कोई खुदा देखते हैं? ऐसा खुदा एक जो मिसाल है वो सिर्फ हम वचन में पाते हैं, अपने जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा को देखते हैं। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। We cannot do anything out of our own efforts. हमारा जो एफर्ट्स है, हमारा जो काम करना है, खुदावन की नज़र में बिल्कुल कूड़े के समान है। The word says is our greatest of works is like filthy rags. कचड़े समान। मगर खुदावन खुदा का प्रेम है। जब इब्राहिम के सामने इसहाक को बलिदान देते समय परमेश्वर ने किस तरह रोका उस तलवार को, और खुदा ने कहा मैं इसका बंदोबस्त करूँगा। और वही चीज़ हम यहाँ पे जब यीशु मसीह क्रूस पे ले जाते हैं, जिस तरह यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है धोखे से, हम इस चीज़ को पूरा होते देखते हैं। किस तरह यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, किस तरह उसका लहू बहाया गया। आइए हम जब प्रभु भोज में उसके मेज़ पे आते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु का चेहरा देखें, अपने दिल को उनके सामने टटोल दें। हम उसके पैर के सामने अपना सर झुकाएं और बोलें खुदा मैं अपने आप में मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बिल्कुल निस्वार्थ होके, बिल्कुल अपना मैं प्रॉफिट इसमें नहीं देखता परमेश्वर, बल्कि आप मेरे ज़िंदगी को ले लीजिए अपने हाथ में। और जिस तरह परमेश्वर आपने मेरी सृष्टि की है, the way that you have created me, Lord, to worship you, to honor you, to praise your name. परमेश्वर जिस तरह आपने मेरी रचना की है कि आपके नाम को मैं बढ़वा दूं, आपके नाम को मैं स्तुति महिमा करूं, मुझे उस चीज़ में आगे बढ़ा परमेश्वर। आपने जिस लिए मुझे बनाया है परमेश्वर खुदा, मुझे उस चीज़ में आप आगे ले जाएं। मैं एक साफ खुले दिल से मैं आपके सामने आता हूँ। मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ परमेश्वर। मेरे इस गंदे ज़िंदगी को परमेश्वर तू पाक बना, परमेश्वर तू पाक कर इसको खुदा। मैं इस गंदेपन में जीना नहीं चाहता। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा पवित्र आत्मा इस समय हम सबको अगुवाई करे, हमारे दिल के ऊपर वो अपना हाथ रखे और हमें दर्शाए कि हमारे बीच, हमारे अंदर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो खुदावन को नहीं लुभाता, जो खुदावन पसंद नहीं करता। हम उन सब चीज़ों को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के मेज़ पे लेके आ जाएं। परमेश्वर को काम करने दीजिए उन जगहों पे अपने दिल में, उन जगहों पे, उन अंधेरे जगहों पे जहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि कोई झांक के देखें। Let Jesus come into our hearts and go into that dark rooms where we don't want anybody to enter. All that wrongdoings, all that wrong things that are inside our hearts, let Jesus enter there. Let him
open those rooms and shine his light there. प्रभु को होने दे कि उस कमरों में जाके अपना उजियाला चमकाए, हमें एक पाक रूप में, एक पाक इंसान के रूप में हम परमेश्वर पिता के सामने खड़े हो जाएं। और परमेश्वर इसके बाद हमारे गुनाहों को नहीं देखता, हमें परमेश्वर एक पाक इंसान के रूप में देखता है, जिस तरह परमेश्वर ने हमें रचाया था, जिस तरह परमेश्वर ने हमें बनाया था। यह है हमारा परमेश्वर जो हमें कहाँ से लेके कहाँ एक शुद्ध, एक पाक इंसान के रूप में लाके खड़ा करता है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने साफ दिल से आते हैं, जैसे भी हम हैं, हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर मुझे पाक कर, मैं गुनहगार हूँ। और इसी विषय में पास्टर दिनेश ने हमारे बीच बांटा कि किस तरह हमारा जो पश्चाताप है, रिपेंटेंस है, वो कितना मायने रखता है। वहीं से शुरुआत होता है कि हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आप आइए मेरे दिल में, आप काम करिए, पवित्र आत्मा मुझे दर्शा कि मुझे कहाँ कहाँ पे बदलना है। परमेश्वर को वचन कहता है एग्जामिन योरसेल्व्स, अपने आप को जांचे। यहाँ पे मैं नहीं हूँ कि मैं आपको जांचूं, हमारा पासबान आपको जांचे। परमेश्वर का कलाम कहता है, खुदावन का कलाम कहता है कि आप खुद अपने आप को जांचें। ये हमारा काम है कि हम खुद अपने आप को जांचें, क्योंकि हमसे बेहतर कौन जानता है। कोई दूसरा आदमी हमारे विषय में नहीं जानता कि हम किस किस चीज़ों से होके गुजर रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या गुनाह है जो परमेश्वर देखता है और परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहते हैं कि हम वापस परमेश्वर की तरफ अपना मुख करें, अपने गुनाह से तौबा करें। और मैं दुआ करता हूँ कि अगर ये समय है और आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने उन तौर तरीक़ों से मुक्त हों, आप अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके हृदय में है, आप में है, जो खुदावन को अच्छा नहीं लगता, खुदावन को नहीं लुभाता, ये एक अच्छा समय है कि हम परमेश्वर के मेज़ पे आए और परमेश्वर के सामने अपना घुटना टेकें और बोलें, परमेश्वर मैं गुनहगार हूँ, मेरे ज़िंदगी में आप काम करिए, मेरी ज़िंदगी में आप काम करिए। और खुदावन बिल्कुल विश्वास योग्य है, उसी समय आपको माफ़ कर देता है। और वो कभी आगे जाके वो नहीं गिनाता, देखो तूने क्या किया था, देखो तुम्हारे गुनाह, कितना गुनहगार हो तुम। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर उसी समय आपको माफ़ कर देता है और आपके गुनाहों को वो भूल जाता है, क्योंकि उससे खुशी मिलती है कि जो उसका बच्चा जो खोया हुआ था, उसने अपने पिता के सामने वापस वो पलट गया, पिता के सामने अपना चेहरा वापस उसने लाया, पुराने तौर तरीक़ों से वो मुकर गया और अपने पिता के पास, अपने खुदावन के पास वो वापस आया। Imagine the joy that our Father in heaven gets when we come to Him living our old sinful ways. मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबों को इस वचन ने उत्साहित किया होगा। आगे मैं कुछ समय रखूँगा कि हम अपने आप को जांचें, अपने हृदय में हम मनन करें, परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने कुछ समय छोड़ें, ताकि हम अपने दुआ में परमेश्वर के पास आएँ और अपने हृदय को तैयार करें। तो इस गाने के साथ मैं कुछ समय छोड़ूंगा ताकि हम अपना हृदय जान सके। तो उसके बाद हम जो प्रभु के मेज़ में फिर मैं अगुवाई करूंगा और मेरे साथ साथ आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं।
देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा। वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। और
और जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। जब तक मैं ना आऊं, मेरे याद में तुम ऐसा ही किया करो। आइए हम दुआ में जाएं। खुदावंद खुदा, आपके शरीर के लिए धन्यवाद जो आपने उस क्रूस पे अपना शरीर परमेश्वर हमारे लिए दिया। परमेश्वर, आपके इस क्रूस पे बलिदान होने के बजाय हमारे पास कोई और चारा नहीं परमेश्वर। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से है परमेश्वर कि हम बिल्कुल निडर होके हियाव के साथ आपके पास आ सकते हैं परमेश्वर। Lord, because you went to the cross, you gave yourself as the perfect sacrifice, made us, Lord Father, that we can come boldly to you at your feet. This is not something of our own efforts. परमेश्वर, ये हमारी वजह से नहीं है, हमारा कमाया हुआ चीज़ नहीं है परमेश्वर। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है परमेश्वर, आपके द्वारा है जिसको हम पाते हैं और एक मुफ्त में पाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो आपके शरीर के लिए। आइए हम सब इसमें शरीक हों। परमेश्वर का देह जो हमारे लिए तोड़ा गया। धन्यवाद हो खुदा। और इसी तरह उसने खाने के बाद, रोटी के बाद प्याली को लिया और कहा, ये जो खून है मेरा एक नया वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। It's a new covenant in my blood that is shed for you. धन्यवाद हो खुदावन कि आपने अपना लहू उस क्रूस पे हमारे लिए दिया परमेश्वर। ऐसा एक खून, ऐसा लहू परमेश्वर जो हमारे ऊपर जब छिड़क जाता है परमेश्वर, आपका क्रोध हमारे ऊपर नहीं रहता, आपका गुस्सा, आपका जो क्रोध है वो हमारे ऊपर नहीं रहता, क्योंकि हमने इस लहू को पा लिया है जो हमारे खुदावन यीशु मसीह का लहू है। हम इसको अपने अंदर प्राप्त करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया। धन्यवाद हो इस लहू के लिए परमेश्वर, जिससे हम पाक हो जाते हैं। जिस यीशु मसीह को पाने पे हम पाक हो जाते हैं, हम उस लहू को के लिए धन्यवाद देते हैं आपका। आइए हम इसमें शरीक हों। ये परमेश्वर का लहू है जो हमारे लिए बहाया गया। आइए हम एक निष्कर्ष के रूप में प्रार्थना करें। I'll lead in a conclusion prayer. Let us pray. Dear Lord Jesus, thank you God for what you have done for us on the cross. Lord, you have lifted us from our sinful ways and you have given us the place where you want to see us. You want to see us holy. You want to see us the masterpiece, the master craft of your hand, Lord. You don't want to see us in sin, Lord Jesus, but you say that our sins are forgiven. When we come to you, our sins will be forgiven and you will remember them no more. Thank you, Lord Jesus, for what you have done for us. परमेश्वर,
धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदा करते हैं आपने जो हमारे लिए किया। हम हियाव से बुलंद होके परमेश्वर आपके सामने आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो आपने किया उस वजह से। हर एक चीज़ के लिए हम शुक्र अदा करते हैं खुदा। धन्यवाद हो परमेश्वर। हर एक चीज़ आपके पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु में आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे। बहुत खुशी हुई कि एक बार फिर से हम मिल के इस माध्यम के ज़रिए से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और किरण के लिए, कृपा के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप हमेशा इतने अच्छी तरह से वर्शिप लीड करते हैं, परमेश्वर की हजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। और रियाज भाई ने कम्युनियन में लीड किया, आपका धन्यवाद। और जो सुंदर वचन आज हमने दिनेश भाई के ज़रिए से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे और आप सब सेहतमंद होंगे। और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। टिकट के लिए अभी कुछ भी नहीं हुआ और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जैसे भी टिकट मिले मैं जा सकूं। बच्चों भी इस बात की उम्मीद रख रहे हैं और हो सकता है शायद एक हफ्ते में मिल जाए और हो सकता है शायद 1 महीना भी लग जाए। तो आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद। उन सब लोगों का भी धन्यवाद करें जो सेवकाई कर रहे हैं, रीटा दीदी के लिए और मिसेस त्रिपाठी के लिए, और जो माइग्रेंट लोगों का जो फीडिंग प्रोग्राम है उसको दुआ में याद रखें। तो आइए हम दुआ करें, फिर उसके बाद मैं बेनेडिक्शन की दुआ करूँगा। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आदर सम्मान महिमा आप ही को मिले प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन बताता है आपकी करुणा हमेशा की है प्रभु जी। आप प्रभु जी कभी भी चेंज नहीं होते प्रभु जी, आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी इस अवसर के लिए। आपसे विनती करते प्रभु जी हफ्ते भर में आपकी हजूरी हमारे साथ हो। पवित्र आत्मा आप आइए हमारे से बोलते रहिए प्रभु जी। आपका अभिषेक हम पर हो। लॉर्ड जस्ट लीड अस एंड गाइड अस, गिव अस रेवलेशन ऑफ योर हार्ट लॉर्ड, हेल्प अस टू वॉक इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। एक सच्चाई से प्रभु जी और एक आत्मा के साथ हम आपके पीछे पीछे चले, आपकी सेवकाई करें प्रभु जी। हमारे मुंह में प्रभु जी आप अपना वचन डालिए, अपना हृदय हमारे अंदर डालिए प्रभु, ताकि उन लोगों को जो निराश है हम आशा दे सके। उन लोगों को जो बीमारी में है प्रभु जी, परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते प्रभु यीशु आपके नाम से उनको चंगाई मिल सके प्रभु जी। प्रभु जी आप हमको अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी उम्मीद से हमें भरिए। आपका धन्यवाद हो, आदर सम्मान महिमा आप ही को मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की हिफाजत और शराकत अब तक हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। विल सी यू नेक्स्ट वीक, गॉड विल।